Good morning, students. Plus two students, we were discussing the first functional group in chemistry and already discussed all alcohols and phenols. Now, there is a subunit that is ethers. So, what are ethers? Ethers, you know, the symbol is ROR. But ethers are of two types. If the same alkyl group is attached on both the side of O, then this is simple or symmetrical ether. But if alkyl is different, then it is mixed ether. Chemically or scientifically, we can say that it is alkoxy alkane according to IUPAC. If both are methyl, then in common we can say dimethyl ether, otherwise it is methoxy methane. And coming to the example of mixed ether, if one side methyl, one side ethyl, then it is according to alphabet. Ethyl methyl ether or methoxy ethane. Similarly, we can discuss the aromatic ethers. If same phenyl on both the side, then it is phenoxybenzene or diphenyl ether. But coming to mixed ether, if methyl on one side and phenyl on one side, then it is anisole in common, otherwise methyl phenyl ether or methoxybenzene. Likewise, this is phenitol. अगर हमने यहाँ पर इथाइल लगा दिया तो इथाइल फिनाइल ईथर और इथॉक्सीबेंजीन अनदर नेम. नाउ coming to methods of preparation of ethers. How we can prepare ethers from alcohols? While discussing alcohol, we discussed this, that if ethanol is treated with concentrated sulfuric acid at 413 Kelvin, then it results in the formation of ether. So, what's the mechanism behind this? The mechanism in the first step, from H2SO4, H positive will come and it results in the formation of protonated alcohol. Then protonated alcohol react with another alcohol and protonated ether will be formed. Then H positive will be lost and diethyl ether will be formed. In this way, if we treat ethanol with concentrated sulfuric acid at 413 Kelvin, we will be getting ethers. But another method is catalytic dehydration. कैटालिटिक डिहाइड्रेशन में क्या करते हैं, इसमें तो हमने एसिड से डिहाइड्रेशन किया, अब हमने कैटालिटिक डिहाइड्रेशन करना है अगर, तो हम एल्यूमिना डालेंगे एंड 513 से 523 केल्विन पर, तो वी विल बी गेटिंग ईथर. बट द फेमस reaction by which we can prepare ether, that is Williamson synthesis. In this case, we will take haloalkane and treat it with the sodium alkoxide. It results in the formation of ether. But many times the question asked in the board exam कि unsymmetrical ether ही क्यों बनाए जाते हैं विलियमसन सिंथेसिस, मतलब इट इज़ प्रेफर्ड, ये नहीं है कि बनते नहीं है सिमेट्रिकल, बट अनसिमेट्रिकल ईथर्स के लिए ही विलियमसन सिंथेसिस क्यों यूज़ की जाती है, बिकॉज द यील्ड इज़ गुड. और अदरवाइज हम अगर सिमेट्रिकल लेते हैं तो यील्ड बहुत पुअर आती है, लेकिन अनसिमेट्रिकल ईथर भी अगर हमने बनाना है तो इसमें चॉइस ऑफ रिएक्टेंट बहुत ज़रूरी है. देखिए, जैसे अगर हमने एक अल्कोक्साइड लिया और एक हेलोअल्केन लिया, अगर हम हेलोअल्केन 1 डिग्री लेते हैं और अल्कोक्साइड 3 डिग्री लेते हैं, जैसे सोडियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड, तो यू विल बी गेटिंग ईथर इन गुड यील्ड. बट अगर आपने ये सोचा कि एक 1 डिग्री लेना है, एक 3 डिग्री लेना है, तो आप रिवर्स ले लेते हो, 3 डिग्री हेलोअल्केन ले लिया और 1 डिग्री अल्कोक्साइड ले लिया, तो ईथर नहीं बनेगा, उसकी जगह पर क्या बनेगा, एल्कीन बन जाएगा. तो यू विल बी गेटिंग रिएक्टिव एल्कीन. वाई? बिकॉज इथोक्साइड जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, इट हेल्प्स इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ H पॉजिटिव फ्रॉम दिस एंड इट इज द फॉर्म आइसोब्यूटेन. तो ईथर बनेगा ही नहीं, तो इसलिए choice of reactant is very much necessary while preparing unsymmetrical ether. Otherwise, we can treat haloalkane with the dry silver oxide and it results in the formation of symmetrical ether. ये नहीं कि हम symmetrical ether बना ही नहीं सकते हैं, we can prepare by this method. Next is I want to discuss the physical properties. Physical properties क्या है? ईथर की एक बड़ी टिपिकल सी स्मेल है इथीरियल, बहुत मीठी मीठी सी स्मेल है. अदरवाइज अगर हम इसका डायपोलर नेचर देखते हैं तो इसकी डायपोल मूवमेंट होती है,
कार्बन डाइऑक्साइड में तो लेफ्ट हैंड साइड की डायपोल मूवमेंट राइट हैंड साइड से कैंसिल हो गई और नेट रिजल्टेंट 0 था, बट इसमें बोथ आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 110 डिग्री, सो इट इज हैविंग नेट डायपोल मूवमेंट। अगर हम इसका बॉइलिंग पॉइंट देखें तो बॉइलिंग पॉइंट ईथर और एल्कोहल आपस में आइसोमर्स है, बट एल्कोहल जितना ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो है इसका थोड़ा ठीक है बॉइलिंग पॉइंट। एल्कोहल का बहुत ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन इसमें सिर्फ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है। लोअर ईथर्स पानी में घुल जाते हैं, वाई? बिकॉज H ऑफ वाटर मेक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड विद O ऑफ ईथर। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज, बेसिकली ईथर्स आर इनर्ट, लेकिन फिर भी ये रिएक्शन करते हैं। एल्कोहल बहुत जल्दी रिएक्शन करता है क्योंकि उसमें एक्टिव साइट है H, लेकिन ईथर रिएक्शन किसके बेस पर करेंगे? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेस पर। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेस पर, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं, इसका मतलब दे कैन एक्ट एज लुईस बेस, तो नेचुरली ये लुईस एसिड के साथ रिएक्शन करके ऑक्सोनियम सॉल्ट बनाएंगे, लाइक प्रोटोनेटेड एसिड्स। ऐसे ही अगर ये लुईस बेस की तरह एक्ट करेगा तो ये लुईस एसिड्स जैसे BF3, AlCl3 इनके साथ रिएक्शन करके एथीरिएट्स बनाते हैं, लाइक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये कॉम्प्लेक्स बन गया एथीरिएट। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमेशा जब भी उसका रिएक्शन करते हैं तो ड्राई ईथर ही क्यों डाला जाता है, बेंजीन क्यों नहीं डाला जाता? बिकॉज इसके साथ ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स एथीरिएट बनाते हैं और बेंजीन के इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइज हुए हैं। अगर हम ईथर का हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो एल्कोहल प्लस हैलोलिकेन बनता है, लेकिन अगर हमने एरोमेटिक ईथर ले लिया, एरोमेटिक ईथर लेते हैं तो वो क्लीव्ड हो जाता है ईथर, एंड क्लीव्ड होकर ये 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटेन बनाएगा। लाइकवाइज ईथर्स का अगर पुरानी बॉटल पड़ी है तो ऐसे यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये एसिड और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड या हाइड्रोपेरोक्साइड बनते हैं, जिससे कि ब्लास्ट हो सकता है। तो इसलिए अगर हमारे पास ओल्ड सैंपल है तो पहले उसको टेस्ट करके और फिर उसको यूज़ करना चाहिए। अगर हम इसकी हैलोजिनेशन करते हैं तो हैलोजिनेशन डिपेंड करता है कि डार्कनेस में कर रहे हैं या लाइट में कर रहे हैं। डार्कनेस में कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही पोजीशन सब्स्टिट्यूट होगी, लेकिन अगर सनलाइट की प्रेजेंस में कर रहे हैं तो सारी पोजीशन सब्स्टिट्यूट होगी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिल्कुल फिनोल की तरह है, आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे और इसमें ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो आपको पता ही है कि जब भी हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन वगैरह से होगी, तो इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन होगी, तो इट ऑलवेज रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट। लेकिन पैरा हमेशा ज़्यादा बनता है क्योंकि उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। अदरवाइज व्हाट आर द यूजेस ऑफ ईथर्स? तो जनरली इसको एज ए एनेस्थेटिक एजेंट यूज़ करते हैं या इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट। दैट्स ऑल फॉर योर फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप। थैंक यू।